So today's topic is components of green economy. Okay, and the first topic under this is renewable energy. We people have already studied all the topics, that is renewable energy, green buildings. Okay, those topics which we have not studied earlier, we have studied earlier this renewable energy. Okay, and the next topic is green buildings. Okay, so under green economy, how green economy is related to this? Because it consists of different renewable energy, green buildings, sustainable transport. Each and every person knows in the class that green economy is based upon all these factors. ठीक है, आपको पता है कि अगर if you people want the greenery to be there, okay, so you have to take care of some type of things that are I'm telling you. That is, the first one is renewable, green buildings, sustainable transport, water and waste management, land management. So these are very very important terms that are to be discussed. Okay, and the first one is renewable energy. So the renewable energy is the type of energy which can be renewed again and again. Okay. For example, there are some examples given like sunlight, wind, rain, tides, biomass. So these type of different examples are being there, which can be which are the examples of renewable energy. Okay, when we talk about green buildings, you people know that many people what they do, they are growing different type of plants over there. ठीक है, वो क्या करते हैं बिल्डिंग के अंदर ही they are growing inside the pots and all. ठीक है, or then they are also taking care of, they are adopting the methods of rainwater harvesting. Please focus on the mouse cursor of mine. Okay, they are also looking upon the solar energy and all. ठीक है, and they are generating minimum amount of waste. So that what do you mean by green buildings? Green buildings का मतलब ये नहीं कि green color से paint कर देना. Green buildings का मतलब होता है कि we are growing different plants in the pots and all. ठीक है, we are taking care of rainwater harvesting, plus we are generating minimum amount of waste, so that our country can be uh, uh, can achieve a good amount of like green buildings and all. Okay, next is sustainable transport. Now each and everyone knows here that many in the metro cities like in Delhi and all, okay, what they are doing, they are making use of CNG gases. That is also a part of natural gas only. So these type of sustainable transportation refers to a means of transportation that is green. इसका मतलब ये नहीं कि we are doing a green color over there. ठीक है, green color करना मतलब नहीं होता है इसका. इसका मतलब ये है कि we are adopting the methods of car sharing, we are adopting the methods of walking, cycling, transit. In the previous session, I have told you earlier about the carpooling also. Okay, what do you mean by carpooling? This is the same as the meaning, that is car sharing. We are sharing a car with someone else, like our friends or family members, when we are going to the same place that we want to go. Okay, so that is a part of sustainable transport. Next is water management. Now, water management includes planning, developing, distributing, and managing the optimum use of available water. हम लोग अगर वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, देन वी हैव टू लुक अपॉन व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अगर आपको पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप अडॉप्ट करोगे तो यू कैन अचीव, यू कैन मैनेज योर वाटर. आपको ये पता होगा कि आपको किस जगह कैसा किस तरह से पानी का यूज करना चाहिए, किस तरह से वाटर का यूज करना चाहिए. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग, developing, distributing and managing the optimum use of available water. जितना हमारे पास अवेलेबल वाटर है उसको ऑप्टिमली हमको यूज करना चाहिए. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ व्हाट डू मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट, ठीक है, like if we are having a garbage, we are throwing it here and there. Okay, and we are throwing it here and there and it is creating much problem over there. ठीक है, तो what we can do, we can manage the waste. Like आपको पता है कि there is one truck you can see. Okay, so here in this truck, it is carrying the waste from one place to another. That is the garbage. Okay, so your waste should be carried out in a proper manner. Okay, my voice is audible to you? Yes or no? Please tell me verbally. Okay, okay, thank you. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एरे मतलब बेटा खूब सारी चीज एक अकाउंट में, ठीक है, जो हमारे पास
पास खूब सारा अमाउंट एक साथ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लैंड मैनेजमेंट। When we talk about land management, it is the process of managing the use and development of land. आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से अपना लैंड का यूसेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू पीपल आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जहाँ से ट्रीज कट किए हैं, जहाँ से फॉरेस्ट वैनिश किया है, वहाँ से यू शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज ओवर देयर। you can you should do reforestation over there. Okay, you should grow more and more trees so that जो आपने ट्रीज कट किए उनकी वैल्यूज उससे इक्वलाइज हो जाए। ओके, सो यू शुड make use properly of the land. Okay, you should not waste that. And plus, what you people are doing, you are throwing the pesticides and insecticides on, spraying the pesticides and insecticides in such a manner that they are harming the land. Okay, what they are doing, they are totally harming the land in, like in what ways, हमारा जो सॉइल होता है वो कैसा बन जाता है, एक टाइम बाद इनफर्टाइल बन जाता है, ठीक है। वी कांट यूज दैट सॉइल अगेन। अगर आप एक ही टाइम पर एक ही जगह बहुत टाइम से स्प्रे, इफ यू आर डूइंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो दैट पर्टिकुलर लैंड एरिया और द सैंड एरिया बिकम्स वेरी इनफर्टाइल, so we can't use that again. Plus, we if we want to grow any type of buildings over there, we can, if we want to construct over there, ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस जगह। ओके, वी शुड मैनेज द लैंड इन अ प्रॉपर, लाइक प्रॉपर मैनर। ओके, नेक्स्ट इज स्किल मैनेजमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको सेव करने के लिए हमारे अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसी वैल्यूज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, ओके, इफ वी वांट द एनवायरनमेंट टू बी गुड, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स ओवर देयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रॉप ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कितने से कितने लैंड कवर करेगा ये एरिया। ओके, if the land is covering in a if the land has been covered in a proper manner, we can make use of that also, ठीक है। For example, you can see, come on this line. For example, a farmer that grows organic crop needs to have knowledge and skill for growing organic crop. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर फार्मर के पास ये वाली नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह से उसको क्रॉप ग्रो कर लिया है, तो हाउ ही और शी विल ग्रो द क्रॉप। ओके, प्लस अगर हम लोग सोलर टेक्नीशियंस की बात करें तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोग उन लोगों को सोलर पैनल्स कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी कैसे यूज में लेनी है, उन सबको ये सब पता होना चाहिए, उनको इंस्टॉलेशन आनी चाहिए उसकी, उनको मेंटेनेंस आना चाहिए सोलर पैनल्स का, अदरवाइज इट विल बी इनटू अ वेन। सो वी कांट यूज दिस टाइप ऑफ, लाइक अगर हमारे में मैनेजमेंट ही नहीं है ग्रीन इकोनॉमी के अंदर, तो वी कांट यूज दीज टाइप ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। कम ऑन द लास्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल, a graphic designer who works for a green company. मतलब ग्राफिक डिजाइनर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। कैसे? बिकॉज कई बार ग्राफिक डिजाइनर्स they are also working for green economy. Okay, so come on the second last line. Some of the green jobs may not necessarily require any specific green skill. इसका क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड स्किल्स होनी ही चाहिए। अगर आप बिना स्किल के भी जाओगे तो देन दे विल ट्रेन यू कि आपको किस तरह की स्किल्स नीडेड है, and you can achieve your required task, or the desired thing that you want to achieve. The next topic is green skills. Now, the skills that are used for promoting green economy are called green skills. जो skills हमारी green economy को promote करती हैं उनको हम बोलते हैं green skills. Okay. Thus, green skills are required for areas related to renewable energy, sewage treatment, and climate resilient cities. Now, when we talk about climate resilient cities, इसका क्या मतलब है? Like for examples, when we talk about disasters, तो disasters में हमें ये पता होना चाहिए, like for example, आपको किसी साइंटिस्ट से ये पता चला कि उस एरिया में डिजास्टर आने वाला है, तो आप कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशनरी मेजर लोगे, सही, जिससे कि अगर डिजास्टर बाई चांस आता है, यू कैन कोप अप विद दैट पर्टिकुलर डिजास्टर प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रिकॉशनरी मेजर कोई रेडी नहीं होगा तो यू कैन कोप अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली, ठीक है। तो आपके पास यू शुड हैव, so that this is the only word, that is climate resilient cities. इसका क्या मतलब है? These cities are those cities which are already ready for each and every type of disasters which are happening in the world. Okay.
नेक्स्ट इज ग्रीन कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन डू वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, हाउ वी कैन सेव द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल, ठीक है, so that we can use them properly. Next is green skills contribute for the sustainable development in the following area. यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्लूड करती है, कौन कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन स्किल्स, अगर ग्रीन स्किल्स की बात करोगे आप, तो ग्रीन स्किल्स इन सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करती है। मैंने इन सब की डेफिनेशन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इन द अर्लियर सेशंस, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, energy conservation and pollution control. So you can control upon all these things, okay, while using these type of uh, energies and all, ठीक है। और ग्रीन स्किल्स इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को कैसे कंजर्व करना चाहिए, वाटर को कैसे मैनेज करना, वाटर को, वेस्ट को कैसे मैनेज करके रखना चाहिए, हाउ टू अडॉप्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर topics, ठीक है। The next is how to, this is the table you can see over here, okay, this is the table. In this table you can see one thing is given that is very very important, and that thing is कि आप किस तरह से लाइक हाउ, अगर आपके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप सेव करना चाहते हो, ठीक है, एंड उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स नीडेड होंगी ही होंगी, अदरवाइज अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आप उसके बिना अपना काम नहीं कर सकते हो, ओके। जस्ट अबव दिस टेबल यू कैन सी 2 to 3 लाइंस which are very very important, ओके। अगर आप इन 3 लाइंस के बारे में नहीं जानोगे तो फिर आप इस टेबल के बारे में नहीं समझ सकते। क्या है ये 3 लाइंस? Just come on this line that is on the arrow. Just focus on this. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has started an initiative called Green Skill Development Program. इसका क्या मतलब है? To develop the skills of Indian youth in the area of environment. Now, this is a type of program that is Green Skill Development Program, which is started by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. और किसके लिए बनाया गया ये प्रोग्राम? To develop the skills of Indian youth, हमारे जैसे लोगों के लिए in the area of environment and forest sector, so as to help them to get employment. हमारे जैसे लोगों के लिए, इंडियन यूथ के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए कि यस, अगर आप अपने एनवायरनमेंट के लिए वर्क करते हो, अगर आप अपने फॉरेस्ट सेक्टर के लिए वर्क करते हो, तो यू कैन बी एम्प्लॉयड प्रॉपर्ली, ओके, यू कैन बी एम्प्लॉयड, यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट ओवर देयर, बिकॉज हमारे पास काफी सारे डिफरेंट जॉब्स, ग्रीन जॉब्स आर देयर, ठीक है, ग्रीन जॉब्स की वजह से यू कैन बी एम्प्लॉयड ओवर देयर, okay. So now here this table is given. Now on the left hand side skills are given, that is purpose of the skill, कि अगर आपके पास, अगर आप नेचुरल रिसोर्स को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये वाली स्किल होनी चाहिए। अगर आप क्लाइमेट रीसाइलेंस को सपोर्ट करना चाहते हो, अभी मैंने रीसाइलेंट का मतलब बताया था, क्लाइमेट रीसाइलेंट का, क्लाइमेट रीसाइलेंट स्टैंड्स फॉर कि अगर आप किसी भी चीज को, इफ यू वांट कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आर, अगर इफ यू वांट टू मैनेज योर डिजास्टर, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने पड़ेंगे, दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ क्लाइमेट रीसाइलेंस, ठीक है। अगर आप उस चीज को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर ये वाली स्किल्स होनी चाहिए, द सेकंड पॉइंट। अगर आप रिसोर्स को एफिशिएंटली रखना चाहते हो थर्ड पॉइंट में, तो आपके अंदर ये वाली स्किल्स होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप फोर्थ पॉइंट, कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, लाइक सपोर्ट लो कार्बन इंडस्ट्री, अगर आप फोर्थ पॉइंट में अगर इफ यू आर सपोर्टिंग लो कार्बन इंडस्ट्री तो आपके पास ये वाली स्किल्स होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल द 4 पॉइंट्स व्हिच यू शुड बी हैविंग अगर आप ग्रीन जॉब्स के लिए ऑप्ट करते हो तो। ग्रीन जॉब्स का क्या मतलब है आपको पता है, सारी जॉब्स अलग अलग होती है एक दूसरे से, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन जॉब्स, तो ग्रीन जॉब्स वो जॉब होती है जो हमें ज्यादातर इन्वायरमेंट के लिए वर्क करने के लिए मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे मैंने ये बोला कि जस्ट गो टू दैट फार्म एंड लुक अपॉन दैट फार्म, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, यू विल बी पेड फॉर दैट, आपको पेमेंट मिलेगा उसके लिए कि आपको उस फार्म का ध्यान रखना है, ठीक है, उस फार्म का ध्यान रखने के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है। तो उस टाइप की जॉब्स जो होती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए प्लस उसको अच्छा बनाने के लिए, उनको हम बोलते हैं ग्रीन जॉब्स, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज here you can see what are green jobs.
Green jobs refer to the employment in an industry that contributes to preserve or restore the environment in that sector, thereby allowing sustainable development. Green jobs वो जॉब होती हैं जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाती हैं, कहाँ पर, ऐसी जगह जो कि एनवायरनमेंट को सही करने के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए यूज आती है। ठीक है, आपको ऐसी जॉब, आपको पता है हर पर्सन, एवरी पर्सन इज डूइंग जॉब, एक टाइम के बाद सबको जॉब करनी होती है। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स वो जॉब होती है जहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसके लिए, आपको एनवायरनमेंट के लिए वर्क करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्रीन जॉब्स। नाउ हियर यू कैन सी सम ब्लू पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, दैट इज इम्प्रूव एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल, लिमिट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हमें ग्रीन हाउस की गैस एमिशन लिमिट कर देनी चाहिए, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस पोल्यूशन, हमें वेस्ट को मिनिमाइज कर देना चाहिए प्लस पोल्यूशन को रिड्यूस कर देना चाहिए, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड रीस्टोर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को रीस्टोर कर देना चाहिए। इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने पहले भी बता दी थी आपको। नेक्स्ट है सपोर्ट अडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स का अडेप्टेशन होता है, तो उसको भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजर्व वाटर एंड एनर्जी, और वाटर और एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। नाउ हियर अगेन वन टेबल यू कैन सी, दिस टेबल इज बेस्ड अपॉन कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ग्रीन जॉब्स मिल सकती है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पर आप वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोफेशनल की जॉब कर सकते हो, सोलर पंप टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो, ग्रीन हाउस प्रोफेशनल टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो। बट आई नो यू विल नॉट ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। ओके, आप अच्छी जॉब्स के लिए ऑप्ट करोगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। इफ यू वांट टू गो इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो उसके लिए आप कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स कर सकते हो, ग्रीन वर्कर्स की कर सकते हो, ग्रीन आर्किटेक्ट्स की कर सकते हो, एंड ग्रीन बिल्डर्स की कर सकते हो। दिस इज अ टाइप ऑफ गुड जॉब। थर्ड पॉइंट, एनर्जी। एनर्जी, इसके लिए अगर आप एनर्जी के लिए वर्क करना चाहते हो तो आप सोलर सेल टेक्नीशियंस की जॉब कर सकते हो एंड इंजीनियर्स। ठीक है, विंड एनर्जी प्रोफेशनल एंड वर्कर्स के लिए जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री, इसके लिए आप नेचुरल साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टर्म इज मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिसाइकलर्स की जॉब कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू गो इन रिटेल सेक्टर, रिटेल पर्सन बनना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर अकाउंटेंट जॉब और ग्रीन सेल्स पर्सन जॉब। ओके, 7 पॉइंट, ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट के लिए अगर जाना चाहते हो तो यू कैन वर्क एज ग्रीन कार इंजीनियर्स। ठीक है, ये भी एक टाइप की जॉब होती है। तो ये सारी क्या है, ये सारी है ग्रीन जॉब्स जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद दीस टाइप ऑफ जॉब्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ओनली, या दिस इज द लास्ट टॉपिक ओनली ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रीन प्रोजेक्ट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन प्रोजेक्ट्स, यू कैन सी ग्रीन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करवाने के लिए, वाटर वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए, सैनिटेशन करने के लिए, इन सब करने के लिए काम आते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यू कैन सी हियर द फर्स्ट ग्रीन प्रोजेक्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय स्वच्छ कोऑपरेटिव। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट किया गया था किसके लिए, जो वेस्ट पिकर्स देखिए सबने, दोज हु आर पिकिंग द वेस्ट फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक है, दोज पर्सन्स प्रीडोमिनेटली फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड, और उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, इनकम का लो होता है, ऑब्वियसली दे कांट अर्न प्रॉपर्ली। आपने देखा होगा वेस्ट पिकर्स जो इधर से उधर वेस्ट को उठाते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स ऑफ पुणे। और फिर पुणे के जो सिटीजन्स है, ये जो मैनेजमेंट है ये क्या करता है, ये जो ऐसे लोग होते हैं जो वेस्ट उठाते हैं, जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, उनको क्या करता है, सिटीजन्स ऑफ पुणे प्रोवाइड्स वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन लोगों को ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पुणे। और ये किसके लिए वर्क करता है, पुणे के लिए ही काम करता है। ये वाला जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ पुणे के लिए ही वर्क करता है। ओके, it is authorized by Municipal Corporation of Pune to provide door-to-door waste collection and other waste management services, and it is also supported by government. ये एक ऐसा कॉर्पोरेटिव है, एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, प्लस ये क्या करता है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जो वेस्ट
ठीक है, तो उनको उठाते टाइम क्या होता है, जब ये वेस्ट उठाते हैं तो आपको पता है कि क्या of the waste and all, ठीक है। तो उससे बेटर ये है कि वी कैन प्रोवाइड देम अ डोर टू डोर सर्विस, वो सबके घर जाकर दे कैन टेक द गार्बेज एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ दिस मैनेजमेंट। सेकेंड इज मॉडर्न डीप चूल्हा ऑफ Society of Development in Environment and Protection. Now, what do you mean by this? This energy efficient chula uses biomass and reduces the consumption of wood by 50%. ये क्या करता है? ये एक ऐसा चूल्हा है, everyone has, I think everyone has seen चूल्हा। वो क्या करता है? We can make food on that chulhas and all. Okay, वो क्या करता है? जो wood का consumption होता है उसको reduce करके 50% तक कर देता है। Okay, सो जो पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो वुड लाना भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है, प्लस बिना वुड के तो वो चूल्हा पे दे कांट मेक द फूड्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वुड का कंजप्शन, ये एक ऐसी मैनेजमेंट है, एक ऐसी वी कैन से ग्रीन प्रोजेक्ट है जिसने जो वुड है उसका कंजप्शन कम कर दिया है, ठीक है। स्मोक का कंजप्शन 80% तक रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, स्मोक भी इससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। लास्ट इज बायो टॉयलेट्स बाय ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन। Bio toilets are created by Green Solution Foundation for hygienic sanitation in villages and slums in the cities that lack sewage system. जहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं होते हैं, जैसे कि स्लम और विलेज एरिया होता है, वहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन है उन्होंने क्या किया है, बायो टॉयलेट्स ओपन करी है। ओके, दीज बायो टॉयलेट्स आर फंडेड बाय डोनर्स एंड स्टेक होल्डर्स, और इनको फंड मिलता है कहाँ से, डोनर्स और स्टेक होल्डर्स से। So that's all. Now this topic has been finished. Come on the this paragraph. The basis for the eco-friendly toilet is the biodigester tank. और इसका बेसिस ये है जिससे कि हम बायोडाइजेस्टर टैंक सही से मतलब कर सके अपना मैनेज, ठीक है। This tank converts human waste into environment standard compatible water with the help of aerobic bacteria. ये एक ऐसा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपका जो द वेस्ट दैट इज देयर इन द टैंक दैट आर कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड कंपैटिबल वाटर, ठीक है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग एंड इरिगेशन, और फिर ये वाटर जो दोबारा से रीयूज करा होता है इन लोगों ने, इसको फ्लश करने के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करा जा सकता है, ठीक है। जो बायो टॉयलेट्स जो ये है फाउंडेशन इन्होंने बनाया है, ठीक है, ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन, ठीक है। Next is this bio toilet provides various environmental benefits like water conservation due to less flushing. आपको पता है इसे water conservation तो obviously हो ही रहा है, because वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को, ह्यूमन वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट को दे आर कन्वर्टिंग इनटू कंपैटिबल वाटर। तो उससे क्या हो रहा है, आपका वाटर तो ऑब्वियसली कंजर्व हो रहा है, ठीक है, एंड दे आर रीयूजिंग आल्सो, and also reduced soil and water contamination, and also ensures lesser occurrences of diseases. वो इसका भी ध्यान रख रहे हैं कि आपके जो डिजीजेस है वो कम से कम फैले और वाटर का यूसेज भी कम से कम हो, ठीक है।